एक रूल था अंडरवर्ल्ड में कि वट एवर यू डू आप एक दूसरे की तरफ करो, फैमिलीज पे अटैक मत करो, राइट? दैट वाज एन अनरिटन रूल, या बट आई थिंक वो सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के गैंग ने ब्रेक किया था. किया। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपके फैमिली में ही वो अनफॉर्चुनेट डेथ डैड के भाई थे। डैड के भाई थे, राइट? इट वॉज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर एनी वन, राइट? अपने फैमिली मेंबर को खोना, बिकॉज वो अनरिटन रूल तोड़ा गया, राइट? उसके बाद जो जो उन्होंने किया आपके तरफ, आपने जो देखा, how do you see everything? Because he retaliated, he did not bow down because दाऊद इब्राहिम है, उन्होंने जवाब दिया उल्टा. Because I think he wanted to expand his Daud wanted to expand his in drugs and he was against drugs, so he just told no. And revenge lena bhi aisa revenge was not bad, and dad is dad आखिर ना. So how can you kill your brother for little whatever? He doesn't want to do all this. He wanted, and Daud is known for all this till now. क्या आपको लगता है कि सिस्टम के अंदर दाऊद इब्राहिम के काफी लोग अरुण गवली के खिलाफ काम कर रहे थे? सिस्टम छोड़ो, बहुत सारे, आई थिंक jealousy was there mostly. System jealousy things were like his name was only there ना, always coming. बहुत पीक टाइम ऑफ हिम स्पेंडिंग टाइम विद हिज डॉटर उन्होंने वो मिस किया, राइट? उनका वो जिंदगी का एक बड़ा रिग्रेट है वो. अभी रिग्रेट तो बोल, अभी क्या बोल सकते, दैट्स नॉट हैपन जान डिलीवरी, जो भी हो गया वो उसका, तो ही मस्ट फेसिंग थिंग ना. वो इमोशनली वी हैड ही हैज 5 बेबीज, सो इमेजिन ही मस्ट बी फीलिंग ना दैट वे नाउ ही इज टू. बट अकेले जब कभी कभी वो रहते हैं ये सब सोच के, डज ही एंड अप गेटिंग इमोशनल? वो मम्मी से बात करते हैं, he doesn't show his emotions that I was doing that, this, that. So mom and dad has that conversation about it. Of course एक गैंग वॉर राइवलरी था विद दाऊद इब्राहिम, वो अलग बात है, एंड द टाइम भी अलग था उस टाइम पे, तब गैंग्स थे एक्सेट्रा जो भी था. बट मुझे इनोसेंट लोग मारे गए, मुझे ऐसा कोई ये नहीं आता. इट वाज राइवलरी बिटवीन देम. I mean that case you'll see nothing was there. That was just a plan to fuss out that. No, but the rivalry was true, right? Rivalry was true. Rivalry, he was getting jealous over that, but afterwards you know what happened, killing for that's this, so that became inside too much, no? And eventually लोग कहते कि the way he retaliated, दाऊद इब्राहिम got scared as well. ये भी लोग कहते हैं. I can show you videos. Yeah, because he did bad, na? Why you have to kill anyone? Family. Which has not done anything, not harmed you. So that's bad only, no? And all people knows he is the one who did this. Because he did not expect the kind of retaliation कि fire back होगा. He thought कि वो बाहर बैठे हैं तो वो कुछ भी करेंगे मुंबई में, चलेगा, कोई पलटी जवाब नहीं आएगा. So that was the thing. So he got surprised. So that's why people say कि he was a little shaken with the way he retaliated. He should be shaken. Good, na? तब आपका identity was just Arun Gawli's daughter, right? What did it feel like? You know, because मुझे लगता है कि एक लोगों का respect भी था, कुछ लोगों का डर भी था, वो mixture था, right? For a young girl to deal with all that, वो कैसा था उस time पे? It was very different. Actually, I was proud to be daddy's girl. I'm still proud. Yeah. So that respect मिलता था level का, it was till now different level only. Nobody can get by God's grace. Can't get such big respect. Means from everywhere because of his name, for what he's done. So it feels very proud to be a daddy's girl till now. Hi, this is Geeta Gawli. It was nice being on his broadcast, and we had a good time. It was knowing about me, my family, my dad. So thank you so much. Thank you so much. Like, share and subscribe. ऑलराइट मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज एक आई वुड से बहुत ही ऐतिहासिक इंटरव्यू करने वाले हैं, एंड ऑल्सो इन अ वेरी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ मुंबई.
हम लोग यहाँ पे आज दगड़ी चौल के अंदर मौजूद है एंड हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गीता गावली मैम एंड आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट privilege because I think she's one of the most sweetest person. लोग बहुत कुछ बोलते हैं but you know मैं जब आया था I came here, I was just walking around Dagri Chawl and I wanted to interview ma'am. I just walked in, ma'am met me that day and I think she was very sweet and उसके बाद हम लोग ने ये प्लान किया. तो सबसे पहले अगर वो आप स्वीटली मुझसे नहीं मिलते तो आज ये नहीं हो पाता. तो बहुत बहुत शुक्रिया for that. No, my pleasure also and you're doing good so I thought let's broadcast Thank you so much. Thank you so much. You know मैंने जिस तरीके से ये इंट्रोडक्शन चालू किया with Dagri Chawl being a historically significant place, right? बहुत कुछ देखा है इस पर्टिकुलर जगह ने, right? But I wanted to understand आपके सबसे initial memories of Dagri Chawl क्या रहे हैं? See, Dagri Chawl is still now memories only. वो memory चालू है. जी. पर सबसे like हमारे जो festivals होते हैं Dagri Chawl में माता बैठती है. So that's very. It's been I think 75 years we are कर रहे माता का माता लेके आ रहे. So I feel blessed with it and main to dad is around. Yes. और after long time he came out after I think 17 years. ये आए. That was this अभी new अभी ये जो movement है वो ये real movement है जब dad आए बाहर after so long and now he's being with our family. We are all together. Feels blessed. मैं इसी चीज पे आना चाहूँगा that आपके initial phases of growing up years में you know दोनों पेरेंट्स का महत्व बहुत होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग अप बिकॉज इमोशनली एक बच्चा अटैच्ड होता है, राइट? मेरे हिसाब से जितना समय शायद आपको आपके मम्मी के साथ समय बिताने के लिए मिला आशा मैम के साथ, उतना शायद आपको अरुण जी के साथ नहीं मिला, राइट? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि वो कितना आपने मिस किया बिकॉज जब आप देखते थे आपके आसपास यू वुड सी अ लॉट ऑफ अदर फीमेल फ्रेंड्स हो, मेल फ्रेंड्स हो, they're around their parents etc and you would miss that moment with your father, right? उस टाइम पे कैसे इमोशनल चैलेंजेस थे जिसके साथ आपने डील किया? ऐसा तो बचपन अब बहुत इजी नहीं गया हमारा, बट मम्मी थी और शी वाज लुकिंग आफ्टर अस. वी वर स्कैर्ड. हम मींस एक अकेली मम्मी जो हम 5 बच्चों को देख रही थी. वी आर नॉट वन, वी आर 5 siblings actually. So being my mom being so strongest, she handled us very nicely. Of course डैड की कमी तो हर टाइम महसूस होती थी बिकॉज सो मच ऑफ प्रेशर, यूजलेस प्रेशर गोइंग अराउंड अस. पुलिस का प्रेशर हर टाइम आना, एवरीथिंग वाज बोलते ना ततर मतर करना, डूइंग जस्ट ट्रबलिंग अस. एंड वी वर स्मॉल, वी हैड अ स्कूल, वी आर गोइंग, बट बाय गॉड्स ग्रेस, बाय भगवान की दुआ से कि हमारा बचपन भी पॉजिटिव ही गया. थोड़ा ऊपर नीचे होता है पर बस डैड को बहुत मिस किया, हर पल मिस किया. पर जो अभी है डैड हमारे साथ, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट. बच्चों को यूजुअली उतना समझ नहीं होता, राइट? तो जो शायद आपके लिए इमोशनली चैलेंजिंग है, स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फादर, हो सकता है आपके आसपास के बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट ऑफ जोक हो, मजाक हो, राइट? तो वो भी आपने डील किया है कभी जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल अगर अरुण गवली जी जेल में है, उस चीज़ को लेके आपके दूसरे बच्चों ने वगैरह उस चीज़ का मजाक उड़ाया? भाई एक रियल बात बोल रही हूँ, आपको झूठ लगेगी पर ये बाय गॉड्स ग्रेस एंड डैड पेरेंट्स ग्रेस हमको ये फेस नहीं करना पड़ा स्कूल में. दे वाज सो गुड. ऐसा बोलते हैं ना पीछे से बोलना, मीन्स टीचर्स लोग ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है. दैट वाज अ ब्लेसिंग. और ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ है कि कोई हमको ऐसे नज़र से देख रहा है. एंड वी वर इनोसेंट, सो वी वर जस्ट लिविंग आवर लाइफ. वी वर नॉट, जो बोल रहा है वो सुनाई तो नहीं दे रहा था हमारे सामने. सो आई डोंट नो, बट द स्कूल लाइफ वाज वेरी गुड, नॉर्मल लाइफ. मैंने जब आपके मम्मी की बस क्या होता था जब पिकनिक ये हो जाता था तो मम्मी हमको बाहर भेजती नहीं थी बिकॉज टिल द स्कूल एंड आवर हाउस नो गोइंग एनीवेयर. सो हमारी बाउंड्री वहाँ तक ही थी. सो दैट वाज डिफिकल्ट. वी कुड नॉट गो लाइक अ नॉर्मल पीपल टू पिकनिक्स और गो विद आउटिंग विद फ्रेंड्स सो मच. सो दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर अस. बट दैट वाज बिकॉज लाइफ को थ्रेट था, जान को खतरा था. हाँ, दैट्स व्हाई. इसलिए मैं थोड़ा आशा जी पे ही आना चाहूँगा. मैंने जब आशा जी का कहानी सुना, यू नो हम लोग जब आज के ज़माने में इंटरफेथ रिलेशनशिप एंड शादी के बारे में बात करते हैं, आज के ज़माने में भी लोग इतना चैलेंज फेस करते हैं. आशा जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूड आई थिंक स्ट्रॉन्ग लाइक अ फोर्स एंड उन्होंने डिसाइड किया कि लोग चाहे जो भी बोले,
Arun Gowli is the love of my life Yeah. and I'm going to stay beside him come what may, jo bhi lafra ho, police ho, jo bhi ho. And she did that, right? I think Of what a course. beautiful classic case of staying there with your partner through every thick and thin, right? आप उस मामले में क्या कहना चाहोगे? I think your mother is a My mother, nosy she in was itself. especially, she was young when she got married. जी. I was born when she was 14 or 18 something. It's Mhm. like very early. And in that age, looking after all this, this is not a, it's not, it's very difficult job. And understanding people around what is there, पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं थी जितनी नेगेटिविटी थी, तो वो सब पकड़ के हमको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने को, एक बोलते ना, एक माँ ही कर सकती. तो शी इज़ बाय गॉड्स ग्रेस हमको बहुत अच्छे से ग्रो अप किया एंड अच्छा सिखाया भी. सो स्टिल वी आर हियर स्टैंडिंग बिकॉज बोथ ऑफ आवर पेरेंट्स एक्चुअली. Touchwood. टच. मैं आई वांट टू टॉक अबाउट, जब लोग अरुण गौली जी के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज, दिस दैट एक्सेट्रा व्हाटएवर. लेकिन मैंने एक और चीज़ सुना है कि दगड़ी चौल के बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो शायद फिनेंशियली उतना स्टेबल नहीं थे टू गेट देमसेल्व्स एजुकेटेड, उन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है, उनका जो एक ज़िंदगी है वो रेडी किया है, राइट? सो मैं वही बोलता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट हिम इन डिफरेंट वेज, बट आई वांट यू टू टॉक अबाउट अ लिटिल दीज थिंग्स एज वेल जो शायद दुनिया को उतना नहीं पता. टेल मी सम ऑफ द ग्रेट स्टफ दैट ही हैज डन. He's done. Still now he's doing great stuff. He's helping people. How much he could make the what point you said, he actually, who could not have education, he made he used to like people getting educated, stand by their own, खुद खड़े हो आपके बल इसमें. So she, and being MLA 3 to MLA 5 years, he's done. Still now no MLA have done that work for people. So that's the history tag, you know. And now in 5 years, what he did, and after we being a corporate for 20 years, we've also done. So that tagline is still going on. He's a Robin Hood. People tell him a Robin Hood. He's done everything for good, not for bad. In fact, आपको खुद, I think you became a corporator when you were 21, 22? Yeah, कितना? 24. 24, right? तो ये जो एज अ कॉर्पोरेटर आपके लिए रिस्पेक्ट है, इज इट अ मिक्सचर कि गीता गौली जी ने जो काम किया है, रिस्पेक्ट फॉर दैट, और इज इट अ मिक्सचर कि गीता गौली जी का काम तो है बट ऑल्सो शी इज अरुण गौलीज डॉटर? इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? I think both mixture. It should be, no? Because I started from him. Then seeing him, I grown and I started doing for people. So it started from him. So it's a both mixture, I think. So yes. I think I got it right. Yeah, you knew it right. You know, अरुण गौली जी के जो कहानियां हैं, से दोस्ती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विद रमा नायक, बाबू ऋषि एक्सेट्रा, हम लोग ने खाली कहानियां ही सुना है एंड a lot of things जो शायद distorted facts भी होते, लोगों को पता नहीं होता, right? But of course, him being your father, he must have shared interesting stories of him during his teenage days या फिर growing up days. क्या क्या interesting कहानियां हैं जो उन्होंने share किया है उस टाइम पे? He didn't share all this about her. He was saying how he hard worked, what his dad was, how his mom was, and he was his stories, like not that stories, real stories to be seen only. And he's always taught us to just pray. Main to every time he says, whatever you do, bas believe in God and leave it on God. फिर आप अच्छा करो, अच्छा ही होगा. So stories are many stories to be. Actually, he always says God stories to us more than him. What happened in Bhagavad Gita? What is the mahत्व of mantras? How to pray? Just if you don't get time, at least ek din yaad, every day, just sitting anywhere, just pray for him. Pray for. That's it. That's the best thing he's told us. आपको याद है आपका एज, द फर्स्ट टाइम जब शायद आपने थोड़ा बहुत होश संभाला होगा? आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट नो, मे बी टीनेज या वगैरह, व्हेन यू सॉ कि आपके खुद के सामने यू सॉ डैडी गेटिंग अरेस्टेड. ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? पहली बार कब था वो बचपन का तो फिलहाल बहुत याद इतना नहीं है, बट व्हेन आई गॉट मैरिड 2007 एंड फॉर दैट टाइम ओनली आई वाज अ कॉर्पोरेटर. हाँ, तो आपको वो दोनों जर्नी पैरेलल है? दोनों जर्नी पैरेलल थे. और फिर इन सम 1 month he got arrested and I was here only.
So that was a first part I could see, and we were not knowing what to do, how to do, you know. But after that, he came 17 years 17 back. years later. So that was a very hard period for us. आपके शादी के टाइम पे जब आपके व्हेन ही गॉट मेट योर हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट ही वाज, बिकॉज़ अ फादर इज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव, राइट? तो वो क्या-क्या क्वालिटीज देख रहे I थे? think this was an arranged marriage, you know. So because my mom and dad जी. liked him, that's why I also got married to him. So my equation, if mom loves dad, no, so I have to do it. So it will be the best अच्छा. decision of my life. And I think they have taken a best decision of my life. I think he's blessed me with a good husband who's very हमेशा protective है, हमेशा एक दोस्त जैसे है. So I'm blessed with it. So yeah. इनफैक्ट ये मैंने उनकी जिंदगी के ऊपर एक फिल्म आया था, अर्जुन रामपाल ने Arjun बहुत, Rampal. आई थिंक इट डिड अ फैबुलस जॉब. आई थिंक ऑन स्क्रीन अगर आप दूर से देखोगे, यू कांट डिस्टिंग्विश एंड बाइफरकेट कि अरुण गवली कौन है एंड अर्जुन रामपाल कौन है. लाइक ही लिटरली He just took the character. he took the inside. character, and I think बहुत सारे मीटिंग्स भी And किए थे, he right? was just waiting when I'll do this. He was into the dad's character. So he also wanted to know things. He met dad many times. He was listening to what dad is saying. So he was so little bit. It's a film anyway. So but he did a good job. He did a good acting actually. बट वो फिल्म में इज इट 100% फैक्ट बीइंग शोन, या फिर थोड़ा बहुत मूवी की वजह से मसाला मार Frictions के? होते ही है, मसाला मारते. Frictions थोड़े तो होने ही चाहिए. नहीं तो मूवी नहीं चलेगी. Everything facts. Some frictions what is style they show. मसाला मार के literally. वो थोड़ा commercially करने के What लिए. happens in jail and हाँ, all. हाँ. So that doesn't happen so हाँ, easily. So हाँ. yeah, that was little मसाला मार हाँ, के. हाँ. एक और चीज आई थिंक जो हर किसी के बारे में बोला जाता है, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट फ्रॉम योर लाइफ राइट Yeah. नाउ एज अ पॉलिटिशियन टू आल्सो अरुण गवली जी. एक चीज जो उनके बारे में बहुत बोला जाता है, एंड आई ऑब्जर्व दैट कि व्हेनेवर एक टाइम था जब अंडरवर्ल्ड एरा था, एवरीबडी हु वाज अ पार्ट, कहीं ना कहीं वो लोग बाहर भाग गए. टॉक अबाउट दाऊद इब्राहिम दुबई भाग गए, Yeah. छोटा राजन बैंकॉक भाग गया इधर उधर. द ओनली पर्सन जो हमेशा मुंबई में थे, मुंबई में आज भी है और आज हमेशा मुंबई में रहेंगे, अरुण गवली के बारे में ये चीज बोला जाता है, राइट? Yeah. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये करेज हमेशा से कि मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, नो मैटर वट एवर इट इज, मैं अपने मातृभूमि में ही रहूंगा और जो भी प्रॉब्लम होगा आई विल फेस इट Yeah. लाइक अ टाइगर. आई विल फेस इट, जो होगा देखा जाएगा. ये करेज का सोर्स आपको क्या लगता है, कहाँ से आया उनके अंदर? बिकॉज कहाँ से आया, क्योंकि उन्हें अच्छा किए लोगों का. गलत हिसाब से किसको कुछ बोलते हैं ना, टेररिज्म रहते हैं वो भागते हैं. ही इज बीन अ डॉन, मींस बीन अ रॉबिन हुड डॉन फॉर द पीपल. लोगों का भला किए और सोचा नहीं लोगों का भला करने से पहले, यू नो. सो दैट्स कॉल्ड अ क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई वो क्यों भागेंगे जब इतना कुछ गलत नहीं हुआ है. कुछ गलत नहीं, जो गलत करते, जो डरपोक रहते वो भागते. तो ही नोज ही वाज अ टाइगर, ही इज अ टाइगर. सो व्हाई उनको जरूरत नहीं है छुपने की. सो या ही नेवर, ही फेस्ड जो भी है सामने, फेस किया जो भी है, और I सबको पता है वो आई थिंक दैट आई मस्ट, मैं क्या, आई थिंक सब लोग उनको उस चीज का क्रेडिट देते हैं. एंड आई थिंक इसी रीजन की वजह से आज भी मैं जब ऑनलाइन वीडियोस देखता हूँ, लोग जब डैडी को मिलते हैं, दे मीट हिम विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेस. मैंने ये भी सुना है कि आज की जो जेनजी है वो उनके फैन भी है, डैडी डैडी करके दे मीट एंड ग्रीट हिम, राइट? तो वो भी पॉपुलर कल्चर से आता है, मूवीज से आता है, एक्सेट्रा. आई थिंक यू मेंशन्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ही इज बीन अ रॉबिन हुड डॉन, ही इज नॉट बीन अ टेररिस्ट. दाऊद इब्राहिम ने जब 1993 में मुंबई में ब्लास्ट्स करवाया, दैट इज द टाइम व्हेन छोटा राजन ने they killed innocent people for no reason, just for their benefits, करेक्ट, not for their own thing. Means लोगों का भला करने के लिए, for their benefits सब किए. So that is called terrorism. So of course they'll run. They don't have any way to move on now, you know. बट जब एक रूल था अंडरवर्ल्ड में कि वट एवर यू डू, आप एक दूसरे की तरफ करो, फैमिलीज पे अटैक मत करो, राइट? दैट वाज एन अनरिटन रूल. Yeah. बट आई थिंक वो सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के गैंग ने ब्रेक किया था. Yeah. एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपके फैमिली में ही वो अनफॉर्चुनेट डैड के भाई थे. डैड के भाई थे, राइट?
इट वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर एनीवन, राइट? अपने फैमिली मेंबर को खोना, बिकॉज वो अनरिटन रूल तोड़ा गया, राइट? उसके बाद जो जो उन्होंने किया आपके तरफ, आपने जो देखा, हाउ डू यू सी एवरीथिंग? बिकॉज ही रिटेलिएटेड, he did not bow down because दाऊद इब्राहिम है, उन्होंने जवाब दिया उल्टा. Because I think he wanted to expand his Daud wanted to expand his in drugs, and he was against drugs, so he just told no. And revenge lena bhi aisa revenge was not bad, and dad is dad आखिर ना. So how can you kill your brother for little whatever? He doesn't want to do all this. He wanted, and Daud is known for all this till now. So yeah, so there is a difference between that. Of course. So Daud Ibrahim, basically आप बोल रहे हो गीता मैम कि was trying to spread the drug cartel and Arun Gowli ji was against it, which is why the Against. enmity started. I don't know that, but I know that he was again eliminated. I don't know exactly what was the point, why he did to kill, but I had that point what came in my mind, and people also knows that. I think all बिल्कुल. people also know. Everything जो हम बात करें, it's in the public domain. Yeah, Information है people available. also knows that. Hmm. What he and he actually had denied it for that all this, and he was not a this. He was a no. He's a politician. He's been for people every time, and they were not. You can't compare them and that No, anyways. of course, of course. Comparisons होता नहीं है, सबका अलग अलग लाइफ होता है, Life एवरीथिंग. मुझे प्लीज ये चीज बताइए कि योर आइडेंटिटी इज ऑफ एंड कॉर्पोरेटर पॉलिटिशियन, Ex-corporator now. Ex-corporator. एक्स कॉर्पोरेटर, 20 years now. This election I हाँ. just lost. बट नो प्रॉब्लम. आई मीन Yeah. देयर इज ऑलवेज अ ब्राइटर So, साइड yeah, टू I द lost फ्यूचर. and jeet, no, but we have हाँ. to work for people. We are बिल्कुल, doing वो it. कंटिन्यूटी है, तो वो Yeah. आप करते रहे हो और आप आगे जाके भी करोगे. बट जब आपने अपना आइडेंटिटी जब तक बनाया नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मेनी इयर्स अगो, Yeah. तब आपका आइडेंटिटी वाज जस्ट अरुण गवलीज डॉटर, राइट? व्हाट डिड इट फील लाइक, यू नो? बिकॉज मुझे लगता है कि एक लोगों का रिस्पेक्ट भी था, कुछ कुछ लोगों का डर भी था, वो मिक्सचर था, राइट? फॉर अ यंग गर्ल टू डील विद ऑल दैट, वो कैसा था उस टाइम पे? It was very different. Actually, I was proud to be daddy's girl. I'm still proud. या So that respect milta that level ka, it was till now different level only. Nobody can get by God's grace. Haram can't get such big respect. Means from everywhere because of his name, for what he's done. So it feels very proud to be a daddy's girl till now. इनफैक्ट मैंने वेलकम वीडियो देखा था जब वो दगड़ी चौल वापस Yeah. आए थे. आई थिंक द वे जिस तरीके से लोग उनके आसपास खड़े रहे थे, द सपोर्ट एंड लव फॉर हिम इन दगड़ी चौल हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस. Yeah, always. He has that vibes, ना? के पास वो आपको भी पता है, सबको पता है. बहुत लोग मिलके भी गए dad मैं तो को. मिलना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कब मौका मिलेगा. जरूर आपको मिलाऊंगी सर. No, he's not little well, नहीं तो I would make you meet him soon, but I'll पक्का make you meet him. इनफैक्ट व्हाट आर द, जो भी आपके जिंदगी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट हिज लाइफ, एवरीथिंग इज कोइंसिडेंट एंड कोरिलेटेड, राइट? My life, you आपके say. जिंदगी में मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपके जिंदगी के जो भी चाइल्डहुड से लेके अभी तक जिंदगी रहा है, टॉप 3 लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ क्या रहे हैं आपके? Top 3 नहीं बोलूँगी, समझदारी. I think by time I think time makes you learn and understand things. और वो ज़रूरी है. और कितना भी बड़ा हो जाए, like I was a shy girl. 12 पास हुआ, dad बोले इलेक्शन लड़ो, which I didn't want it to. And no, but my family, my brother told me, no, you have to do it after dad becoming MLA. So I won by dad's. I never thought I'll be a politician actually. That was the thing. My friends till now say that, how come कैसे you बन be गई? कैसे हो गई अभी politician? So politician, I feel social worker only. So we सीखने में time लगा क्योंकि very young थी. So it time लगा, but we try. I feel when your दिल अच्छा हो ना, साफ, तो things make a way. मुझे अपने को वे मिल जाता है by भगवान की दुआ से. पर मन साफ होना चाहिए. और ऐसे आगे बढ़ते गए, लोगों के साथ जुड़ते गए. 3 time नगर सेवक भी हो गए. So it's been a good journey, learning, respecting people, not just being a politician. बस दिखाओ करो और काम मत करो. And I feel in politicians, people should not take God's name and इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए उन्हें. भगवान मुझे आपका रीजन से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, आपके काम से इलेक्शन लड़ना चाहिए.
what you are, Hindu, Muslim. बिल्कुल. That is why I feel that is, and you should not take your God name. आप इलेक्शन लड़ते हो तो I think that should be against only. बट ये हमारे देश में गीता जी हमेशा से रहा है, यू नो, एंड इनफैक्ट आपको भी पता होगा, आपने बहुत बार सुना ही होगा, आई हैव सीन इंटरव्यूज ऑफ योर्स जहाँ पे लोगों ने भी आपको पूछा है. एक समय पे इनफैक्ट लोग बोलते थे कि हालांकि कंपैरिजंस नहीं हो सकता बिकॉज टेररिज्म एंड डॉन टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. बट समवन लाइक बाला साहेब ठाकरे जो इतने रिस्पेक्टेड फिगर है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये पब्लिक स्पीच में कहा था कि अगर वहां पे दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गवली है, राइट. But main part you know that dad being an MLA when he was, most of the Muslims voted for him. Yeah. I think 50% Muslim voted and Hindus also. So sometimes you should, it doesn't matter who you are. Correct. See, now also I was a corporate नगर सेवक, मेरा वोट हमेशा 70% मुस्लिम ही रहा है. Still I won, na? Correct. So that's the thing. Now this is coming too much. People mentality is changing. So that's not right when you're working for like this. लोग भड़काने वाले ज्यादा आ गए भगवान के नाम से. लिटरली भगवान के नाम से बड़ा, पर ये नहीं देख रहे कि भगवान तो अपना प्रयास है. दैट इज इंडिविजुअल थिंग व्हाट वी हैव टू डू. वो इलेक्शन में नहीं आना चाहिए. आपके मदर के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है विच यू फील कि मम्मी के अंदर ये जो क्वालिटीज हैं मेरे अंदर भी आए हैं एंड मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी ये पास ऑन करूँ? नहीं, मम्मी जैसी लाइक स्ट्रॉन्ग वुमेन मुश्किल है होना. वी आर ट्राइंग बट वी कांट दैट स्ट्रॉन्ग. या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, क्योंकि भगवान का जितना करते हैं वी कैन नॉट डू सो मच. वहाँ तक अभी आए नहीं, पर है what she has that thing for that. अब तक हो रहा है, slowly हो रहा है. इनफैक्ट मैं डैड मम्मी जैसा कोई बन नहीं सकता है. लाइक यू नो, आई थिंक यू कैन जस्ट बी फील लाइक लव्ड, यू नो. इनफैक्ट उनके केस में इट वाज नॉट जस्ट ऑपोजिशन अबाउट हिंदू मुस्लिम लव, इट वाज अबाउट ऑपोजिशन, यू नो, पुलिस था, सोसाइटी था. शेमिंग कितना हुआ रहेगा मैं इमेजिन कर सकता हूँ उस टाइम पे. उनका लोग बोलते होंगे कि आई मीन लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, राइट. तो वो भी उनको शेम करते ही होंगे कि क्या तुम अंडरवर्ल्ड एंड माफिया एक्सेट्रा के बीच में फंस दो. बट शी टुक ऑल ऑफ दैट. आई मीन सल्यूट मैन, अनबिलीवेबल. एंड दैट टाइम वी डिडंट हैड मींस पापा अलग ही, मींस पापा ने भी फैमिली को नहीं बोला था. शी आल्सो वेंट फ्रॉम देयर, दे गॉट मैरिड इन द मंदिर. So handling such pressure also and being together and afterwards तो एक साथ आ गए, वो तो होना ही था. That's not a thing. But being in that जोड़ी ऊपर वाले ने लिखा है वो. हाँ, वो अब ऊपर वाले नहीं लिखा. Otherwise नहीं होता तो फिर नहीं possible ऐसे. And their love story and still they are together. That's, it's बोलते हैं ना, it's a history. मैं मूवी के रेफरेंस में कहना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव सीन डैडी. बहुत बार मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जब अरुण गवली जी जेल में थे तो शी वुड गो मल्टीपल टाइम्स टू यू नो जेल, गेट हिम होम फूड बिकॉज जेल में उस तरीके का खाने का थोड़ा इशू होता है एक्सेट्रा. तो ये सब पूरा सच है, असली में हुआ था? नहीं, रियली डैड का क्या होता था, जब बहुत पुलिस लोग क्या ना इनकाउंटर्स बहुत कर रहे थे बीच, सो वी वर स्कैर्ड कि आजकल चालू हो गया था इनकाउंटर्स एंड ऑल. सो मम्मा ओनली वन वुमन यूज्ड टू गो बिहाइंड बियॉन्ड in the car behind where they are taking kabhi Aurangabad, kabhi Nagpur. So she used to run and put the फटाफट letters लिखे सब departments को भेजते थे. So imagine that time it was not that. Now things can be opened up fast. That time things can't be opened up fast. बहुत difficult था. So mama did all this. She was a protection for dad. Literally she was a big protection for dad. क्या आपको लगता है कि सिस्टम के अंदर दाऊद इब्राहिम के काफी लोग अरुण गवली के खिलाफ काम कर रहे थे? सिस्टम छोड़ो, बहुत सारे. आई थिंक jealousy was there mostly. System jealousy things were like his name was only there na, always coming. I think system also, government, everything matters. And of course what you said, that also. So there were stages of it.
मुझे बताइए ना वो स्टेजेस के बारे में, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. स्टेजेस में से ऑफ कोर्स ना, अभी पहले तो ये he was against, then Hmm. after elections he showed his power, करेक्ट. right? That morcha, which was history. So after that, government started coming on them. So like there are stages till now. I can't see it on the camera so much, but people knows everywhere. But my dad is out. I'm happy now. इनफैक्ट लोग जब कहते हैं कि when they meet him, there's an aura around Arun Gowli, right? That aura cannot be taken away because of the kind of life that he has had. And आपको क्या लगता है कि ये जो उनका नेचर है, लोगों को मदद करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बिकॉज आई हैव रेड हिज स्टोरी, मिल्स बंद हो गए थे उस टाइम पे, इट वाज फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? शायद उस टाइम पे वैसा नहीं होता तो शायद उनका जिंदगी कुछ और अलग होता, होता, राइट? सो आपको भी लगता है कि उनका जो भी जिंदगी रहा है एज एन अंडरवर्ल्ड डॉन, इट इज वेरी सिचुएशनल, उस टाइम के सिचुएशन की वजह से? जब सब मिल्स बंद ही हो रहे थे, रोजी किधर थी? पापा के डैड भी मिल वर्कर ही है. Yes, आई हैव रेड. And he's also been a mill worker, so nobody's have supported them. So कैसे जाते? It was a big story. From there the only story starts. All so many thousand people घर में भूखे हो गए थे. So not just for a land. So he started fighting for people, na? So who does it? डैडी मूवी में एक बहुत इम्पैक्टफुल डायलॉग था, एकदम क्लाइमैक्स के टाइम पे आया था, कि जिन बड़े बड़े बिल्डर्स हमारे साथ काम करके लैंड खाली कराते, ये खाली कराते, उनको हमारे साथ सेम कुर्सी में बैठ के इज्जत के साथ, ऐसा कुछ तो डायलॉग था, इफ यू रिमेंबर द मूवी, लाइक दे विल वांट टू यूज देम फॉर देयर ओन बेनिफिट, बट जब आप लाइक द बिल्डर्स एक्सेट्रा, लैंड खाली कराने के लिए वगैरह एक्सेट्रा, बट जब आमने सामने रिस्पेक्ट के साथ मिलके बैठने का बात होता है, तब दे वांट शाय अवे बिकॉज़ इनके साथ इनको दिखना नहीं है, राइट? He faced all that. No. Dad never was a builder like that. Lobby was different. He never faced all this. I don't think so. वो खाली करना लैंड वो दूसरे करते थे, वो हमारा तो वो इतना, बिकॉज वो मूवी में दिखाया था, वो थोड़ा डाला होगा मसाला आया पर लेट्स, या जो हो गया है वो है, थोड़ा बहुत रहेगा भी, आई डोंट नो. बट लोग, हाँ, बिल्डर्स पहले करते थे, आई थिंक ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे थे. डैड उसमें इन्वॉल्व नहीं थे ज्यादा. दैट वाज नॉट. As a female politician in this country, आपके हिसाब से what is the biggest challenge? Biggest challenge has been, because we need, biggest challenge is that the people should support the people. If you're doing good, you should appreciate it. If just not acting every day and making what is right, I feel. And I think everyone should support that thing. And we have to discuss that. Some wanted to just, women has to be also that way, but इंटेंट सही होना चाहिए. इंटेंट सही होना चाहिए. कोई अभी, इट्स नॉट ओनली वुमेन्स, इट्स बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स आल्सो. आई से वुमेन्स ने बोले मेंस एंड वुमेन, सम मेंस ने भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वुमेन्स ने भी अप्रिशिएट. इट्स कम एंड टेक, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एंड देन वी ग्रो टुगेदर एंड वी कैन ग्रो पीपल आल्सो टुगेदर, आई फील. अभी जो करंट स्थिति है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, स्पेसिफिकली शिवसेना में जो चल रहा है, हाउ डू यू सी दिस? Now what to say? I can't say. Politics has changed now totally. Now it's not been politics. It's something else. Means कुछ भी हो सकता है. Overnight बदल सकता है. Overnight बदल सकता है. And I really, of course, I don't know. After that move, Uddhav Thackeray sir के, तो I don't know. It's going bad luck only to him. After becoming a CM, I feel. So you know that what that politics has happened. मुझे अपने बचपन के सबसे इंटरेस्टिंग किस्से सुनाइए, विच जो अगर आप आज भी याद करते हो, यू फील सो हैप्पी एंड चेरिश कि यार ये समय अगर वापस बिताने को मिले ना तो मजा आ जाए. ऑफ कोर्स माय स्कूल टाइम्स. वो स्कूल में जाना, सुबह फ्रेंड्स मिलना, फिर स्टडी करना, कभी पनिशमेंट मिलना, लाइक यू नो, और कभी बुक्स नहीं हुए तो वो बुक्स फिल करके लेना. That now we cannot do, na. That's school time. College is college, but school is school. And हमारे घर में हम किधर जाते नहीं थे, तो we were 4-5 siblings. So cricket ही घर में खेलते थे. सब कुछ, कैरम हो, क्रिकेट हो,
So हम थे ना एक साथ, मेरे भाई बहन सिस्टर. So we used to play at house only. So we didn't bother only what is happening, what is outside. We used to go one restaurant. We say how to order it. We have not seen the theaters also. I think after when I was in 6th standard, that time I saw theater once only. That also once. So that was a bachpana, but we were happy doing playing. We used to always go to our mummy's village. साल में एक बार 2 महीना. समर हॉलीडेज. उधर फिर भागो करो, मिट्टी में खेलो, जाओ, गाड़ी ट्राई करो, सीखना चला. सब कुछ एक साथ. How nice. So it was a good time we had in that. You know, बच्चे जो होते हैं when they are young, inquisitive होते हैं, उनको बहुत सवाल पूछना होता है. जब आपके फैमिली के ऊपर खतरा था, जान का खतरा था, which is why आप इधर उधर नहीं जा पा रहे थे, right? As young kids आप जब पूछते थे कि क्यों हम नहीं जा पा रहे एक्सेट्रा, आपको क्या जवाब मिलता था? हम पूछते ही नहीं थे. We never asked. We never asked. I don't know. We were so innocently जान दो what that. We knew something's not, and we didn't have people around so much. And it was mom's responsibility to take care. Mom used to also not come out. We didn't had families around who's supporting mostly. सब अपने अपने दुनिया में थे. So that time was very different. So I think whatever happens, happened for the best. Now too we are seeing the world only now everywhere. So good. Sometimes that innocent, whatever happens is good, I feel. For us, we had a best time our child. Only we missed our dad a lot in between. We used to be gone. But this 17-18 years का जो gap था, that was very difficult. आप जब जेल में जाते थे उनसे मिलने, used to go. He used to break down in emotions. Of course, we had all emotions. Of course, we break down ना. नहीं वो भी ऐसे आपको वो देख के मुलाकात होती थी कब होती है, जो जाते टाइम वो फील आता था ना, वो फील जब बताया नहीं सकता, वो फील जताया भी नहीं सकते अपन. So it's like that. I mean, I believe he is come out for good and आगे जाने का कुछ तो ऐसा है नहीं situation because he's come out of bail. But दुश्मन जो है, लोगों के दुश्मन जो है वो तो रहते ही है, right? अगर कभी किसी ने कुछ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की तो आपका बैकअप प्लान क्या है? देखो वो हम सोच ही नहीं रहे थे, हम कुछ गलत. We are now relaxed as a family. Now we are, Papa is not into politics also. So we are having a good time to each other. So इतना कुछ गलत ही नहीं कर रहे, कुछ है ही नहीं. अभी जेलेसी जिसकी भी हो, let them see. We'll deal with it. If we've not done anything, we'll deal with it by God's grace. In fact, मैंने आपके बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, एंड आई लव दैट रील. जिस तरीके से दूसरे बच्चे आए थे, एंड आई कुड सेंस दैट दिस इज द काइंड ऑफ हैप्पी एनवायरनमेंट व्हिच परहैप्स गवली फैमिली वांटेड हमेशा. शायद उसके पहले जनरेशन को मिला नहीं, बट आई लव द वे जिस तरीके से वो अगले जनरेशन के लिए सब चीज कर पा रहे हैं दिल खोल के, जो शायद उनको नहीं हुआ, राइट? बिकॉज लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो पास करते हैं कि चलो हमको नहीं मिला तो हम हमारे बच्चों को भी वो नहीं करने देंगे, राइट? बट आई थिंक आपके फैमिली में बीट योर हस्बैंड, आप, आई सॉ डैडी एज वेल वीडियो में थे, मम्मा, एवरीबॉडी, राइट? अजय, बॉबी, ऑल वी, माय सिस्टर्स बेबीज, ब्रदर्स बेबीज कमिंग टू दैट वाइब्स वर वेरी हैप्पी वाइब्स. या सो अभी जो गवली फैमिली के बच्चे हैं उनको क्या लाइफ लेसन्स के हिसाब से क्या बोला जाता है उनको? Pardon? आई एम सेइंग दिस, जो गवली फैमिली के अभी बच्चे हैं, वो आर यंग, गोइंग टू स्कूल, गेटिंग एजुकेटेड एक्सेट्रा, उनको एज लाइफ लेसन्स आप लोग क्या सिखाते हो? क्या सिखाते? वही अच्छा ही सिखाते हैं. अभी क्या सिखाते वो एग्जैक्टली बोलने से, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सी, लुक एट पीपल. फिर वो मैनेज भी सिखाना पड़ता है. बच्चे यू नो ना ज़्यादा ये भी पैम्पर्ड भी होते हैं, तो मैनेज सीखते हैं तो सीखेंगे, नहीं तो कुछ जिद भी करते. सो गुड ओनली वी आर थिंक अच्छा ही सिखा रहे हैं हम सब फैमिली कि अच्छे से चलो. हाँ, स्टडी करो. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट. मेन तो स्टडी करो, जो करना है करो, खेलो कूदो, पर स्टडी करो. लोग कहते हैं कि बट नो प्रेशरिंग आल्सो, बट स्टडी हैप्पीली. हाँ, आप मतलब आप बोलते हो कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, बट एट द सेम टाइम आप प्रेशर नहीं डालते हो कि आपको 100 में 100 ही लाना है. बस सीखो एंड ग्रो अप एंड डू योर ओन थिंग्स, राइट? हाउ नाइस. मैं ये जानना चाहता था कि व्हेन यू डील विद किड्स एट अ ह्यूमन लेवल, बहुत एम्पैथी लगता है, बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए होता है बच्चों से डील करने के लिए, राइट? बच्चे को देखो क्या, देयर आर ओनली पेरेंट्स हु इज डीलिंग विद द वन बेबी. देयर आर सो मेनी बिग पेरेंट्स आर डीलिंग विद योर बेबी.
Means there is a grandmother, grandfather, their husbands के side, मम्मी के side, then sisters, there's so वो environment ही अलग हो जाता है, you know that उसमें ज़्यादा ये नहीं होता है. नहीं तो वो alone, I think some alone parents they have to take it very मुझे बहुत ये रहता है. So by I think जितने parents around हो they need their love, so they understand कि आगे कैसा चलना है, कैसे रिश्ते रहते. We have to respect every अपनी family, you know, anyways whatever it is, but we have to respect our family. Whatever है भूल जाने का, you know, like that environment should be for a baby, and by God's grace वो है for all dad's grandchild, I say all family, so it's going good. That's good. मैं ये चीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा. इनफैक्ट इट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ व्हेन आई सी दिस. मैंने जब डिसाइड किया था एंड आपके साथ मिलने के लिए जब मैं पहले दिन आ रहा था, तो मैंने कुछ दोस्तों को और मेरे टीम में से किसी को लोगों को मैंने बोला था कि मैं गीता गवली जी से मिलने के लिए एक प्रयास करूँगा दगड़ी चौल खुद जाके, राइट. तो अभी दगड़ी चौल की कहानियाँ लोगों ने सुना एक्सेट्रा, तो मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि यू नो अंडरवर्ल्ड डॉन डॉटर एक्सेट्रा, तो माफिया ऐसा कुछ होगा. तो उन्होंने मेरे कॉल पे मेरे साथ एक पिक्चराइज किया होगा कि गीता मैम अगर होगी तो मतलब ऐसा ही होगा, 4-5 लोग खड़े रहेंगे आसपास सिक्योरिटी में, ये दैट, तुम जब जाओगे चेकिंग होगा. आई वाज माइटी सरप्राइज जब मैं आया, बिंदास आया. यू वर सो काइंड एंड स्वीट. आप जस्ट एंटर कर रहे थे. यू वर सो काइंड एंड यू वर सो हम्बल. आप मुझे अंदर लेके आए. तो मैं यही जानना चाहूंगा कि नाउ बिकॉज आई एम मीटिंग यू फॉर द सेकंड टाइम इन पर्सन, मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जिंदगी जो है इट इज जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, राइट. बट बाहर एक परसेप्शन है कि अंडरवर्ल्ड डॉन की डॉटर है तो जिंदगी बहुत थ्रिलिंग होगा, यू नो, ये टाइप होगा. तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों को. कोई किसको है, किसी को नहीं है, क्योंकि वो पहले का अभी जिंदगी भी बदल गई है, you know, and we never had a bouncers and securities till when we were going in school also. Because उनको लगा शायद आर्म्ड लोग होंगे. नहीं हम कुछ नहीं बोलने वाले बोलते, पर जो मुंबई में जो है लोगों को पता है. We can't keep arms na. Because exactly that's we what don't need that also. Because I was surprised जिस तरीके से आप लेके आए थे. That's why I'm highlighting it again and again कि जो लोग शायद वो I don't know आपको किसने बोला होगा ये. मुझे 2-3 लोगों ने बोला होगा. And I think oh my God. Yeah, genuinely I'm not kidding. That's why I'm clearing it again on camera कि it's a very मतलब it's just like दगड़ी चौल is just like any other चौल जहाँ पे लोग रहते हैं. मैंने सुना है. And we have an office, so we have to entertain people and we have to respect what is going on. We can't ignore जैसे भी. मैंने सुना है कि दगड़ी चौल जो है वो कुछ साल में रीडेवलपमेंट में जा रहा है. शंभू टावर्स नाम हो रहा है उसका. Mostly, तो ये कितने so you have all information. मैं सब निकाल के आया हूँ मैं. Because एक तो आपका महत्वपूर्ण टाइम मिल रहा है तो इट शुड बी ऑफ वैल्यू, राइट, कि मैं सब चीज जान के आऊँ. तो कितने साल में आई होप अभी 1 साल में खाली हो जावे, और फिर जैसे खाली होगा तो वैसे 3-4 साल तो लगते बनाने. सो ये 4-5 साल में दिखेगी न्यू दगड़ी चौल. बट शंभू टावर्स नाम के पीछे अरुण गवली जी का भी है, बिकॉज वो शंभू नारायण को बहुत मानते हैं, राइट. शंभू मानते हैं, अपने दगड़ी चौल की सोसाइटी भी है, सो वी थॉट इट्स अ गुड नेम. लेट्स सी, वी आर सेइंग नाउ इट्स अ प्रोसेस नाउ. अब तक टूटना है, करना है, तो होप फॉर द बेस्ट. जब वापस आए थे अरुण गवली जी घर पे, आपका पहला कॉन्वर्सेशन क्या था उनके साथ? बिकॉज बहुत सारे इमोशंस हो गए, 17 साल बाद वापस आए. नहीं, जैसे वो देखने से वो फील आता है ना, वो ऐसे जताने से वो अलग बात है. ऐसे बोल नहीं सकते यू केम, आई एम फीलिंग हैप्पी. दैट्स आई फील वी वेलकम हिम. हमने उनके पैर छुए, सो दैट फीलिंग केम इज कम बैक होम फॉरएवर. बट आप इन जनरल एक्सप्रेसिव हो या बहुत मतलब अपने एक्सप्रेशंस आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो? यू आर मोर ऑफ अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस बाय यू नो मतलब एक्शंस एंड नॉट वर्ड्स. या वर्ड्स होने चाहिए, पर वो ऐसे आर्टिफिशियल भी नहीं दिखने चाहिए. एक्शंस कैन फील पीपल, सो आई फील दैट बेटर. आई डोंट फील इट्स हैपेंस. शुड हैपन लाइक दैट, सो दैट ऑर्गेनिकली होना चाहिए. एंड उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज आई थिंक जब वो जेल पे थे, एक बहुत पीक टाइम ऑफ हिम स्पेंडिंग टाइम विथ हिज डॉटर, उन्होंने वो मिस किया, राइट? उनका वो जिंदगी का एक बड़ा रिग्रेट है वो. अभी रिग्रेट तो अभी क्या बोल सकते. दैट्स नॉट हैपन. जान डिलीवरी जो भी हो गया वो उसका, तो ही मस्ट फेसिंग थिंग ना. वो इमोशनली वी हैड 5 बेबीज,
So imagine he must be feeling na that way. Now But now अकेले he's too. Huh? बट अकेले जब कभी कभी वो रहते हैं ये सब सोच के डज वो ही एंड हम अप गेटिंग इमोशनल? इमोशनल वो मम्मी से बात करते हैं हम he doesn't show his emotions that I was doing that this that. So mom and dad has that conversation about it what he feels. तो वो बच्चों तक वो आने ही नहीं देते नहीं बिकॉज ही नोज कि बच्चे लोग को अगर वो पता चलेगा तो दे विल स्टार्ट फीलिंग बैड एज वेल. या पता चलेगा वो समझ में भी आता है ना फेस एक्सप्रेशंस बट शी टॉक्स टू दैट बट नाउ दोज डेज आर गॉन नाउ गुड डेज आर देयर वी हैव टू थिंक ओवर दैट ही इज देयर विद अस एंड ही शुड बी हेल्दी वेल्दी ऑलवेज. he's 71 right now. अपना फिटनेस Now का his क्या कर birthday रहे is हो? coming July अच्छा वाह. 17. So he's turning 72. He's turning 74. I think. 74 wow. But I think by God's grace fitness in terms of That's एकदम proper walk करते हैं सब कुछ जिस तरीके से सब कुछ अच्छे से करते हैं right. I mean that's great. Yeah. I think the fitness level अपने fitness के लिए क्या करते हैं? What does he do? Is he eating well? He's कसरत कर रहे हैं? meditation he does. And he's in yoga he does. So yeah. मैं जब गाड़ी लेके अंदर आया मैंने देखा DCPL दगड़ी चौल प्रीमियर लीग बाय एनी चांस क्या होता है आता क्रिकेट? वो क्या अपने दगीचल के क्रिकेट्स होते हैं इधर हाँ हर साल. हर साल. ये साल डैड भी थे तो और धूमधाम से किए. तो उन्होंने खेला या फिर उन्होंने एज अ नहीं अपनी guest थे? दगीचल की टीम ही कितने थे 10-12 एक बच्चे लोग की टीम हाँ मिड एज और हाँ एक बड़े लोग की हाँ और लेडीज टीम भी. अच्छा लेडीज टीम अलग. सो इट्स नॉट ब्लेंडेड लाइक No, लड़का no, लड़की. first small, then big, हाँ. then ladies. हाँ क्या So बात. that. वी आर स्लोली कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन. मेरे आखिरी के कुछ गिने चुने सवाल है वो ये है कि गीता गौली जी अपने पॉलिटिकल करियर को इन द नेक्स्ट 5 years कैसे देखती है? हाउ इज शी प्लानिंग? आई नो लोग कहते हैं कि इफ यू वांट टू मेक गॉड लव देन प्लान, बट थोड़ा बहुत तो लोग सोचते हैं ना कि यार अगले 4-5 साल में मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं. तो वो कौन से टारगेट्स थे जो आपने फिलहाल तो रखे? अभी क्या है ना ये इलेक्शन के बाद ना द टारगेट्स आर दैट फिलहाल whatever is coming first understand take your time 6 months जो आ रहे वर्क ऑन दैट एंड आगे का देखते हैं. वी आर प्लानिंग फॉर एमएलए. आई एम प्लानिंग अगेन फॉर एमएलए सो वी हैव डन वर्क वी स्टिल डूइंग वर्क. उसमें प्लानिंग नहीं होती वो करके देना है यू नो डायरेक्ट फील्ड पे ही है तो फील्ड पे ही करके लो. सो दैट्स नॉट एग्जैक्ट प्लानिंग. प्लानिंग विल कम व्हेन द इलेक्शंस आर coming that time. Means that time exactly that time. बाकी ward wise we are there only so many years from that के time से so we know Bhaikala ward. So let's see what goes. Planning for MLA. I still remember your word जो आपने इंटरव्यू के बीच में बोला था ना. I think I've caught that very well. One thing is terrorism जो कि completely अलग है because वो सबको नुकसान पहुंचा रहा है right. And one thing is a battle between two individuals. मुझे ये जानना था कि आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि in a lot of ways Arun Gowli ji is very misunderstood as well? See people वो पुलिस वाले वो न्यूज आती थी वो टाइम तो मिसअंडरस्टैंड तो होता था but everyone loved him ना still they are loving him. If he had a bad name nobody would come only to him. There is a different type of people. All people are fans all over Maharashtra. It's not only Mumbai. So imagine the respect, amount of respect he has. So I don't look after what comparison. I can't talk also about that comparison. So नहीं मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि वो कभी कभी बिकॉज दाऊद इब्राहिम की जो एक्टिविटीज है वो देश को तो नुकसान पहुंचाए. मुझे ऐसा कोई किस्सा नजर या मुझे याद नहीं आ रहा है कि अरुण गौली जी का कोई एक्टिविटी जो देश को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा. बस फंसाया गया हुआ था जो केस में जो वो फंसाए हुए केस है. वी बेल्ड आउट आल्सो फ्रॉम देयर. सो ही इज क्लियर एंड कट. सो जो भी उनको मिलते हैं you don't feel that he is a misunderstood person by any means? People must be misunderstanding or not. Now that time is gone. So I don't want to think over it. Now Papa's respect is so big. इतना बड़ा respect है dad का all over. So वो बात ही नहीं आती है और वो खुद दिखता है आपको भी दिखता है. जो misunderstood है they think misunderstood and I don't think no some अभी वो time खत्म हो गया तो I don't think so. They are misunderstood. Some must be. I don't know that over. But what do you think? मेरे हिसाब से मैं वही बोल रहा था कि दाऊद इब्राहिम की जो एक्टिविटीज है
उसने देश को नुकसान पहुंचाया है, सीरियल ब्लास्ट हो, इनोसेंट लोग मारे गए, राइट? व्हेन आई हियर स्टोरीज ऑफ अरुण गौली, मुझे याद नहीं आता कि इनोसेंट लोग मारे गए. आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट. ऑफ कोर्स एक गैंग वॉर राइवलरी था विद दाऊद इब्राहिम, वो अलग बात है, एंड द टाइम भी अलग था उस टाइम पे, तब गैंग्स थे एक्सेट्रा जो भी था, बट मुझे इनोसेंट लोग मारे गए, मुझे ऐसा कोई ये नहीं आता. इट वाज राइवलरी बिटवीन देम. time means that case, you'll see nothing was there. That was just a planned route to just to fuss out that. नहीं, but the rivalry was true, right? Rivalry was true. Rivalry, he was getting jealous over that. But afterwards, you know what happened. Killing for that's this. So that became inside too much. No? Yeah. And eventually लोग कहते हैं कि the way he retaliated, Dawood Ibrahim got scared as well. ये भी लोग कहते हैं. I can show you videos. Yeah, because he did bad, na? Why you have to kill anyone Family. which has not done anything, not harmed you? So that's bad only, na? And all people knows he is the one who did this. Because he did not expect the kind of retaliation कि फायर बैक होगा. ही थॉट कि वो बाहर बैठे हैं तो वो कुछ भी करेंगे मुंबई में, चलेगा, कोई पलटी जवाब नहीं आएगा. So that was the thing. So he got surprised. So that's why people say कि he was a little shaken with the way he retaliated. He should be shaken. Good, na? Good that I think good should happen. Should. हुआ होगा, no doubt. मेरा आपसे गीता जी आखिरी सवाल ये है कि आई लव द वे यू सेट कि वी एनकरेज आवर किड्स, आप लोग पढ़ाई करो, बट हम उन पे अनजस्टिफाइड प्रेशर नहीं डालते. जिसको जिंदगी में जो बनना है वो करे. यू बिकेम अ पॉलिटिशियन बिकॉज अरुण गौली जी वांटेड, राइट? बट गोइंग फॉरवर्ड आपके बच्चों में आप क्या इंटरेस्ट देखते हो? आगे का जनरेशन जो गौली फैमिली है, व्हाट डू यू सी देम बिकमिंग? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और समथिंग एल्स? I really don't think that way. I think let him grow in the good vibes and let him enjoy every bit. फिर आगे अपन ये बोलेगा इंजीनियर बना के डॉक्टर, आई डोंट गो. एटलीस्ट ही शुड बी स्टेबल इन हिज माइंड टू डू समथिंग बेटर फॉर हिम आगे जाके. बट एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट क्या है उनके? स्पोर्ट्स वगैरह या क्या? या अभी ही इज जस्ट स्मॉल, इज 5 years old. हां. सो अभी फिलहाल तो बड़ी जर्नी बाकी है उनकी. एंड आई थिंक बाय द टाइम दे ग्रो एंड माइंड चेंजेस होते हैं ना बच्चे. नाउ इनसे आई वांट दिस, आई वांट दैट. तब तो हम भी बोलते थे पायलट बनना है, ये बनना है, वो बनना है. सो हुए नहीं ना. सो नाउ आई कैन नॉट से, बट आई थिंक पॉजिटिविटी अच्छे से ग्रो हो, सब कुछ स्टडी भी हैप्पीली करो, जो भी स्पोर्ट्स करे हैप्पीली करो, फिर आगे देखते चल आगे बढ़ेंगे और क्या. आई थिंक बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ओपनिंग अप एंड शेयरिंग योर लाइफ जर्नी, योर थॉट्स इन सच अ ब्यूटीफुल अनफिल्टर्ड मैनर, गीता जी. एंड आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड. मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका. आई होप कि जो भी सवाल मैंने पूछे, इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. कुछ भी चीज़ से आपको होपफुली बुरा नहीं लगा हो, बट देन द इंटेंट वॉज कि जो सवाल जनता के थे वो मैं थोड़ा लेके आऊँ, आपके साथ बात करूँ. एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. एंड आपके आगे के पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ जो भी है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. आपके बच्चों को भी they get good health and everything that they want moving forward. And ladies and gentlemen, that was the one and only Geeta Gowli ji on my YouTube channel, Shubhajit Ghosh. And आप लोग ये podcast ज़रूर देखो. You'll see a lot of interesting Instagram reels as well from this conversation online. And I think she deserves all the good health, love and appreciation moving forward. तो आप उनको वो चीज़ ज़रूर दो. And जो भी आपको इस podcast को लेके feel हो, please feel free to comment on my YouTube channel and share your thoughts. बहुत बहुत शुक्रिया. Like, share and subscribe.